were covering preamble in the last class on Friday. Now, in today's class, we are going to resume our discussion on the factual and analytical side of the preamble. I had explained in the last class each and every adverb to the preamble to the Constitution of India. So I assume that you guys are revising things simultaneously. Yes. Okay, can you see me? Can you all see me now? All right. Just 1 minute, sir, guys. So you can all see me now, right? Actually, today's class had to be postponed because of Women's Day celebration in our organization today. So that's why. Just 1 minute. So, does it make sense now for everyone? Can you all see me now? Okay, so here we go. Good evening, everyone. So let's continue with the discussion that we were having in the previous class. So republic का मतलब मैंने बताया था, a state in which supreme power is held by the people and their representatives, right? And which has an elected or nominated head of the government rather than a monarch, right? Accountability. Example, Saudi Arabia is an absolute monarch. Today is Women's Day. So in Saudi Arabia, only recently the women have been given the right to drive cars. Okay, women have been given the right to drive cars only recently in Saudi Arabia. And the kings and the people there, the kings and the princes there, they are flagrantly, they are openly, brazenly, they are violating the rights of the people. So this is the culture in a monarch, where the people's representatives, they are running the government like prime minister, okay, no, like other MLAs and MPs. There you see the culture is very much, the culture of government is very much accountable. Right, those kind of things are there. Democratic. A democratic polity is based on the doctrine of popular sovereignty. That is, people will decide how they want to be governed. Government of the people, for the people, and by the people. The famous adage by Abraham Lincoln: government of the people, for the people, and by the people. Now we see that we have got democracy in India, but let me do an analysis of it. But democracy is there, but do we have the tools of accountability? If I ask you a question, identify the tools of accountability. Do we have any tools of accountability in our country which make the people's representatives accountable to us? Tell me, answer this for me. Tools of accountability which make the people's representatives accountable to their the populace, the electorate. We can say that right to information is one of them, right? RTI. Then we should be having compulsory discussion with the people. Okay, people's representatives should compulsory associate with the people, isn't it? They should compulsory consultation of each and every policy being brought about. Yes, judiciary is the indirect way. Very nice. You've added a dimension. Let me just dwell upon the same. Let me just explain the same to you. See, people's representatives are there, right? People's representatives. I'm so sorry, guys. Yes, so these people's representatives are there, but these people's representatives, they are not amenable to people directly. Until recently, people's representatives were rendering themselves, holding themselves accountable only through judiciary. If you have any problem with the functioning of the government, you can go to the you can go to judiciary, and then judiciary will be
rendering them accountable, right? People cannot directly hold the people's representatives accountable. Or the other means of holding the government accountable, government means people's representative, prime minister, chief minister, MPs, MLAs, so they could be held to account by whom? By the parliament or state legislature. There was no direct means of holding the people accountable, right? Was there any direct means? समझ में आ रहा है? Elections, yeah, elections is a 5 year, once in 5 years kind of an affair. Periodic elections we would say. मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एज यू मस्ट हैव सीन इज द, यू मस्ट हैव रेड दैट डीपनिंग डेमोक्रेसी. Title of various books is there, deepening of democracy. Democracy periodic elections के साथ दिवाली के तमाशे की तरह 5 साल में एक बार आने वाला त्योहार डेमोक्रेसी को रिड्यूस करके हमने रख दिया है ना? People's representatives, is it an effective tool? Please answer for me. People's representative asking questions to the parliamentarians, asking questions to the government, since we have got PFG. What is PFG? Parliamentary form of government. Since the government is in majority in the parliament, mostly the popular house, तो parliamentary form of government होने की वजह से ये ineffective हो जाता है. This is ineffective. We shall discuss this in detail in the topic parliament. ये ineffective हो गया. Judiciary, yes, it is effective, but what are the cons of having judiciary as the representative of the public? Please answer. This has got a negative side too. What is the negative side here? The negative side of judiciary holding this process accountable is, number 1, delays. Number 2, as this is my favorite topic, judicialization of governance. सरकार जजेस चला रहे हैं, एंड ये बात मैं पिछले 3 साल से कहते आ रहा हूँ. DNA में जो लोग मुझे जानते हैं, या any of you who's been listening to me, मैंने ये बोला था कि वो दिन दूर नहीं कि जजेस पार्लियामेंट में देखे जाएंगे. वो दिन दूर नहीं, when the day is not far when you would be seeing the judges sitting in the parliament. And here comes Ranjan Gogoi. Ranjan Gogoi, the former CJI, has been appointed to the parliament. Judicialization of governance is happening. ठीक है? जुडिशलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस. अब 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, 5 ईयरली इलेक्शन. दिस इज टू मच ऑफ अ टाइम पीरियड टू बी गिवन टू अ प्राइम मिनिस्टर. लाइक, नेम द प्राइम मिनिस्टर. टू मच ऑफ अ टाइम पीरियड टू बी गिवन टू अ प्राइम मिनिस्टर. लाइक 5 years is too long a time period to be given to a prime minister. Like, बोलो. कुछ चीज़ें तुम ही बोलो तो अच्छा होगा, नहीं तो इल्ज़ाम मेरे पे आ जाएगा ना. टू मच ऑफ अ टाइम पीरियड टू बी गिवन टू अ प्राइम मिनिस्टर. लाइक, बोलो. अरे हद है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मेरी. चलो जो भी है छोड़ो, ठीक है. तुम लोग गलत हो, बहुत गलत हो. 1 आदमी 2 आदमी सही है, पता नहीं जो भी है ना. डिसअपॉइंट करते हो तुम कभी. मैडी, सॉरी. सो नाउ कमिंग हेयर, Maddie is my dog's name, so do not misunderstand. Anyways, so it's too much of a time period to be given to a prime minister having majoritarian tendencies, right? Majoritarian tendencies. जिसकी मेजॉरिटेरियन, जैसे इंदिरा गांधी. यस, राइट. कम क्लोजर टू दी प्रेजेंट, कम क्लोजर टू दी प्रेजेंट नाउ. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, डीपनिंग डेमोक्रेसी. अगर हमारे यहाँ सही मायने में डेमोक्रेसी है, तो जैसे अभी बिल पास हुआ था ना, ब्रेक्जिट का बिल पास हुआ यूके में. तो ब्रेक्जिट का बिल पास हुआ
तो वहाँ पे क्या है, ब्रेग्जिट का बिल पास होते टाइम वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम होता है रेफरिंग द मैटर्स ऑफ पॉलिटिक्स, रेफरिंग द मैटर्स ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस, रेफरिंग द फंडामेंटल क्वेश्चंस टू द पीपल। सो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे निर्भया केस हुआ, 1 लाख लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को फेसबुक पेज पे साइन अप किया कि यस वी साइन अप दिस पिटीशन। हमारे यहाँ पे 10,000 लोग पिटीशन साइन करते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर स्वीडन जैसी कंट्रीज में पिटीशनिंग करी जाए गवर्नमेंट की, स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या है कि अगर गवर्नमेंट को 10,000 लोग या एक सर्टेन परसेंटेज अगर कोई ऐसा साइन अप कैंपेन चलाता है तो गवर्नमेंट को मैंडेटोरियली उसको आंसर करना होता है उस कंसर्न्ड मिनिस्टर को। हमारे यहाँ ट्रॉल्स कह के डिलीट करा दी जाती है वो ट्वीट को डिलीट करा दिया ना, जब भी अभी चल रहा था मोदी रोजगार दो, तो उन्होंने क्या किया, डिलीट करा दिया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। किसान अगर धरने पे बैठे हैं तो बैठे रहें, पूरी सर्दी उन्होंने काट दी तो थक के हार के चले जाएंगे, राइट। तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है डेली बेसिस पे ऑब्जर्व नहीं कराई जाती। आरटीआई है, लेकिन आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी बैकलॉग बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। चौथा नंबर जो है राइट टू रिकॉल, जैसे अभी हरियाणा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी को लगता है कि पंचायती राज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉल कर सकते हैं। समझ में आया, 2.5 साल के बाद रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। ऐसा है कि यदि आपने किसी को 5 साल के लिए जिता दिया तो बस वो काम करता रहेगा। ये है टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। चौथी एक चीज जो मनमोहन सरकार लेके आई थी, क्या बोला गया, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन। प्री लिखते रहो मेंस के लिए से, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन मतलब मनमोहन सरकार ने ये कहा था 2010 की इस पॉलिसी में कि यदि कोई भी पॉलिसी लाई जाएगी, कोई भी बिल लाया जाएगा, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन उस पर मैंडेटरी होगा, सरकार को ये करना मैंडेटरी होगा। एवरी बिल विल बी पुट अप ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री फॉर पब्लिक कमेंट्स फॉर 3 लॉन्ग मंथ्स। आजकल क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं कि बिल कब आ रहा है, राइट। तो बिल कब आ रहा है, पॉलिसी कब हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तुम ही लोगों को एजुकेट करने के लिए, लेकिन तुम्हें ही नहीं पता कि वो कब आएगी, उस पर कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हम सतयुग में हैं, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही है ना, ये क्या बनाती है, डेमोक्रेसी को इर्रेस्पॉन्सिव बनाती हैं। इसमें कल्चर ऑफ एनार्की जैसा नज़र में आता है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज नज़र आती हैं, है ना। ये सारा कुछ है, ये था इसका एनालिसिस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, as is the case in Scandinavian countries, as is the case in democratic countries, right? Ajit, in indirect democracy, on the other hand, representatives elected by the people exercise the supreme power and thus carry on the government and make the laws. This type of democracy is also known as representative democracy. It is of 2 types, parliamentary and presidential. हमारे यहाँ पे parliamentary है, presidential और parliamentary का comparison we shall see in the coming classes. Okay, comparison later on. Indian Constitution provides for the representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions. Executive is answerable to the parliament, to the legislature. State legislative assembly में जैसे तुम देखते हो कि legislature को answerability एक बनती है, clear? 6वीं चीज पे आते justice. The term justice in preamble means 3 distinct forms of justice: social, economic and political, which is secured through various provisions of fundamental rights and directive principles. Political justice implies that all the citizens should have equal political rights, equal access to all the political offices and equal voices in the government. Political justice implies that all the citizens should have equal political rights. Okay, fundamental rights, article 14, commercial codes. अब यहाँ पे देखो political rights, सभी सिटीजन्स के इक्वल पॉलिटिकल राइट। देखो मैंने सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी है, लोगो छुपा दो। अगर मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के तुम्हारे सामने आ जाऊं और फॉर्च्यूनर, सफ़ेद रंग की फॉर्च्यूनर में आऊं, मैं बोलूँ कि मुझे वोट दो, तुम दोगे? नहीं दोगे, है ना। क्यों? क्योंकि
क्योंकि मेरे पास 40 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्चने को नहीं है। कमर्शियल कोर्ट्स। अब एक और चीज़ है, पॉलिटिकल जस्टिस आपके और मेरे लिए बराबर होना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, which says that common man and a secretary to the government of India they both are equal. Fast track courts for politicians is a violation of my fundamental right. Commercial courts, fast track courts for politicians, they are a violation of my fundamental rights. कैसे? अगर मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, पीछे करते हैं, ठीक है, अगर मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ और मैंने किसी मिनिस्टर के खिलाफ गलत बोला, जस्ट 1 मिनट, अगर मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैंने किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ गलत बोला, ये हूँ मैं जेवी और ये है कोई एक नेता, इसका नाम है लल्लू, ठीक है, ध्यान से सुनो इधर, कोई नाम से कोई व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब नाम काल्पनिक हैं, ठीक है। अब इस लल्लू ने क्या किया, चारा खा लिया, फॉर्डर स्कैम, ठीक है। अब ये फॉर्डर स्कैम में इसका केस आएगा, तो इसका केस तो चला जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, लेकिन क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एस्पिरेंट हूँ, बेचारा यूपीएससी एस्पिरेंट, अब जल्दी मुझे भी है क्योंकि अगले चुनाव में, अगले इलेक्शन से पहले इसका आउटकम आ जाना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट रखी है, इफ देयर इज अ चार्जशीट पेंडिंग अगेंस्ट हिम, पेंडिंग अगेंस्ट लल्लू इन द कोर्ट, ही वुड नॉट बी एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस because he is a dagi neta, he would be rendered as a tainted minister, he would not be able to contest elections. But if I am a poor UPSC aspirant, I would have to go through regular judiciary, which is very very time consuming. It will take me ages, it will take the ages for my case, for outcome of my case to come out. By the time I would already be 32, age limit would be gone. Isn't it a violation of Article 14? In my case, it's going to be regular judiciary, but in his case, since he is a politician, he is a Sasi Kala या फिर कोई और कला, इनके केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो पॉलिटिकल जस्टिस का नेगेशन करता है, आगे जो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो ये इसका नेगेशन है। आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ दीज पॉलिटिशियंस, यू कैन टेक द एग्जांपल, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट, एसएससी कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। अभी तक उनकी आधों की बेचारों की शादी हो गई होती, ठीक है, वो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो अच्छी शादी होगी, इसलिए वो बेचारे शादी नहीं कर रहे। फिर यू कैन टॉक अबाउट दीज फार्मर्स, जो ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये कोई नेता बन गए तो इनकी चार्जशीट जल्दी सॉल्व हो जाएगी, अगर ये नेता नहीं बने तो दिक्कत, अगर ये हार्दिक पटेल बन गए गुजरात वाले, चुनाव लड़ने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये कन्हैया बन के रह गए, इनको चुनाव नहीं लड़ने तो दिक्कत। गलत है ना ये? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो यस बोलो जल्दी। क्विकली से यस। चलो आगे। Justice. The term justice in the preamble means 3 distinct forms of justice: social, economic and political, secured through various provisions of fundamental rights and directive principles. Right? Political justice implies that all the citizens are equal. Fast track courts for politicians is a violation of my fundamental right. I have explained you how and why. Social justice means the equal treatment of all the citizens without any social discrimination based on caste, color, race, religion, sex, etc. Social justice. सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दी सिटीजन्स। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम किसी हायत होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड। मेरे पास पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल जस्टिस है, लेकिन सोशल जस्टिस मेरे पास नहीं है, या सभी के पास नहीं है। कैसे?
अगर तो कोई गरीब बच्चा जिसने शैबी से क्लोथ्स पहन रखे हैं, गंदे से डर्टी क्लोथ्स पहन रखे हैं, उसकी जेब में भले ही 1 लाख रुपए हों, ठीक है, उसकी हो सकता है उसने भीख मांग के इकट्ठे किए हों, लेकिन उसकी दूरदशा देखते हुए इकोनॉमिक जस्टिस ना होने की वजह से, या सोशल जस्टिस कैसे कि कहीं ना कहीं उसका कास्ट, कलर, रेस या फिर उसकी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है तो उसे नहीं आने दिया जाएगा। वहाँ पे लिखा है राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड, और बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो उन्हें भगा देगा। ये है सोशल जस्टिस का कॉन्टूर, राइट। तो स्टेट, इसके लिए हमने नेगेट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा है दैट स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या स्टेट ऐसा कर रही है? इज स्टेट डूइंग समथिंग फॉर दिस? स्टेट कर तो रही है लेकिन खाना पूर्ति कर रही है। क्या किया है सरकार ने? जन धन योजना अकाउंट, जिसमें पैसे नहीं डिपॉजिट करे, राइट। मनरेगा की वेजेस जो कि आती ही नहीं है, बहुत लेट आती हैं, कर रही है सरकार, करने की कोशिश कर रही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो कि तीन दशक पहले, 30 साल पहले भी 300 रुपये थी, आज भी 300 रुपये है, राइट। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस being extended to any particular section of society। जैसे कि पहले क्या होता था, खाने अब्दुल खान, कुछ ऐसा ब्रिटिशर्स ने एक टाइटल्स कॉन्फर कर रखे थे, राय बहादुर और ये सब, ठीक है, जो कि एक सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट करते थे। वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया में, इसलिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ओनली ऑनरेरी टाइटल्स आर देयर, बट दोज आर ऑल्सो फॉर, ऑनरेरी टाइटल्स आर ऑल्सो फॉर व्हाट? Honorary titles are also for they cannot be used as prefixes or suffixes with your name। ऐसा नहीं लगा सकता कि मैं भारत रत्न जतिन वर्मा हो जाऊंगा कल को, लेकिन अगर मेरे पास जब टाइटल भी होगा, लेकिन मैं ये नहीं यूज़ कर सकता जतिन वर्मा भारत रत्न। सिर्फ मैं एकेडमिक टाइटल्स जो कि मेरी डिग्री की वजह से या जो मेरी क्वालिफिकेशन या किसी एग्ज़ाम क्लियर करने की वजह से मुझे मिले हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट, और जतिन वर्मा मान लो IAS, अब मैं IAS बन सकता हूँ क्योंकि लेटरल एंट्री आ गई है, राइट। समझ रहे हो ना बात को? तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जॉइंट सेक्रेटरी का पोजीशन IAS को नहीं, अब किसी को भी मिल सकता है। अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, लेकिन पॉइंट है ये है कि सरकार किसी ना किसी तरीके इन्फ्लक्स कर रही है अपने कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स का, राइट। अब किसी को भी उठा के जॉइंट सेक्रेटरी बना दो और वो आपको जो कहोगे आप उसको सरकार उस पर डिसीजन ले लेगी, तो ये गलत हो रहा है। आने वाले टाइम में गलत होगा, उस पर भी बात करेंगे हम, राइट। लेकिन एबोलिशन ऑफ टाइटल्स गलत होगा, मतलब टाइटल्स, किसी पे कोई भी टाइटल्स यूज करता है तो वो गलत होगा। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स अच्छी चीज़ है। अब आता है इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप अमीर हो तो आपके लिए काफ़ी दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जस्टिस, नॉट ओनली वन डायमेंशन ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर विच टाइप ऑफ जस्टिस? फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर ओनली पॉलिटिकल जस्टिस। Okay, primarily you have to answer political justice, whereas directive principles they strive to provide economic and social justice। समझ में आया? इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स को अगर आप पढ़ोगे तो लार्जली पॉलिटिकल जस्टिस क्रिएट करते हैं वो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एट्सेट्रा। ये सोशल जस्टिस इससे क्रिएट नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा। आप कह सकते हो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल से सोशल जस्टिस थोड़ा हद तक होगा, लेकिन इन जनरल, इन पर्टिकुलर अगर पूछा जाए कि ये किस तरह का सोशल जस्टिस क्रिएट करते हैं, तो ये इस तरह का सोशल जस्टिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन discrimination between the people on the basis of economic factors। It involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income and property। इसीलिए हमने क्या किया हमने elimination of glaring inequalities in wealth, income and property। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice। कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस दोनों अगर हो जाते हैं तो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो सरकार ने इसके लिए क्या बनाया? नेशनल
नेशनल फंड बनाया, जो कि प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे 2010 में, तो एक नेशनल फंड बनाया गया जिसमें कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लिख लो इसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की डिसइन्वेस्टमेंट का सारा पैसा इसमें क्रेडिट कर दिया जाता था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर सरकारी जो बैंक वैंक बेचे जा रहे थे, जो भी करा जा रहा था, तो जो भी शेयर होल्डिंग एसबीआई में डाइल्यूट करी गई, इसमें उनका सारा पैसा उसमें आ जाता था। अब उससे निकाल के पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, किसको? मनरेगा वेजेस में। नेशनल सोशल इंक्लूजन फंड करके एक फंड बनाया था, नेशनल इंक्लूजन फंड। ठीक है, उसमें सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट, उसमें से पैसा निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। गॉट इट? तो ये सारी चीजें हैं। नाउ a combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. Distributive justice. Clear? Equal protection of laws in equal circumstances. It is a positive concept. As a logical corollary, if circumstances, ये मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा. Economic justice is clear to everyone? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, इस पे मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाना चाहूँगा। देखो, ट्रिकल डाउन थ्योरी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे लाई गई है, आजकल नहीं पूछते लेकिन पता होना चाहिए। ट्रिकल डाउन थ्योरी ये थी कि जो अमीरों को पैसा दिया जाएगा, रिच लोगों को जो पैसा दिया जाएगा, रिच उससे क्या जनरेट करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उससे गरीब लोगों को वेजेस वगैरह मिलेंगी, तो इक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अमीर लोगों ने ये नहीं किया, ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गई। शार से पानी नीचे गिरता है लेकिन शार से पैसा कभी नीचे नहीं गिरेगा। यू नो, शार जो नहाते हो जिससे, ठीक है, ऊपर फुहारा चला के, तो वो उससे पानी नीचे नहीं गिरता। सरकार ने अब ये काम ट्रिकल डाउन थ्योरी के फेलियर के बाद गवर्नमेंट हैज टेकन अप दिस जॉब ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ड्यूरिंग दी कांग्रेस एरा 2004 से। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कुछ इस तरह से लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा? देखो, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट, कि पैसे को जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह उस टाइम पे थी, अब उनका पैसा गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूट तो क्या कहें, चाहे वो मनरेगा वेजेस के थ्रू किया जा रहा है, चाहे वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के वे से किया जा रहा है, मनरेगा, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फिर यू कैन से इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, देन नेम अदर थिंग्स, नेशनल फंड्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, देन जन आरोग्य योजना, लिखा है ना ये। अब बाकी स्कीम देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इन्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन हैज बीन अबॉलिश्ड, राइट। नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस। अब आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स टॉपिक के दौरान इसको समझाऊंगा, अभी नहीं, राइट। तो अब आते हैं इस पे, यहाँ पे प्रियम्बल, इवोल्यूशनरी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रियम्बल ड्यूरिंग लास्ट 70 ईयर्स। 70 साल में प्रियम्बल कैसे इवॉल्व हुआ है, ये हमारे लिए समझना क्यों है, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर और पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट जो थे अमित शाह, उन्होंने ये कहा कि प्रियम्बल में ये जो 3 वर्ड्स हैं, जो एडवर्ब्स अभी हमने समझे, क्या क्या, क्या क्या 3 एडवर्ब्स हमने समझे? क्या क्या 3 एडवर्ब्स हमने समझे जो बाद में ऐड करे गए? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये 2 वर्ड्स नहीं दे रखे थे, ठीक है, बाद में ऐड करे गए। इंटेग्रिटी बाद में ऐड करे गए, ये पहले नहीं था ये सारा कुछ, अभी इसको स्टडी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल इन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, बेरूबारी केस 1960। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रियम्बल, बेरूबारी केस आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल थ्रोज लाइट ऑन सेवरल वेग प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें समझ नहीं आते, ठीक है। अब मैं वहां से कोई बुक उठाऊं, मान लो बुक में बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती है ना, जब आप कोई बुक लेने जाते हो, वैसे तो इंडिया में ये कल्चर ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, किसी ने बोला था वो बुक उठा के ले आते हैं, है ना। तो
प्रेफेज पढ़ के, जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, उनको आप देखोगे वो किसी दुकान पे फॉरेन पेंगुइन वगैरह का या कोई अच्छा कोई बुक स्टोर होगा, वो वहाँ पे खड़े ना, ऐसे लगता है पूरी बुक ये यहाँ पे मैडम यहीं पे पढ़ डालेंगे ना, देखते हो ना कई कई बार वो ताड़ते हुए तुम लोगों को, तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रीफेस पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हो। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बुक का कवर है अच्छा है, शशि थरूर लगा हुआ है, तो चलो ठीक है, कम से कम नाम शशि जो है लड़कियों जैसा है, थरूर है तो थोड़ा कोई पढ़ा लिखा होगा, है ना, तो तुम्हें सुरूर आ जाता है उसके नाम पे। वो प्रीफेस क्या समझाता है हमें कि हाँ ये बुक इस चीज को डील करेगी, बताता है कि नहीं बताता है प्रीफेस, कभी पढ़ के देखना, राइट। दुकानदार तुम्हें घूरने लगेगा, लेकिन अगर कोई अंग्रेज देख रहा होगा, उस बुक को पढ़ रहा होगा, तो उसे पता होगा कि हाँ ये बुक जो है अंग्रेज लेके जाएगा। हमारे जैसे जैसे ही प्रीफेस पढ़ने लगता है तो क्या होता है, उसको घूरने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कुछ यहाँ से बुक से जो है फोटो तो नहीं ले रहा। पॉइंट प्रीफेस का ये था कि कोई बुक में कोई बाद में कोई दुविधा हो कि तुम ये टॉपिक उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो टॉपिक नहीं निकला, इसलिए वो प्रेफेस में पहले से समझाई जाती हैं चीज़ें, समझ रहे हो। नाउ प्रेफेस में वो चीज़ें पहले से समझाई जाती हैं। ठीक उसी तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेफेस यानी कि प्रियम्बल को इस वे से रचा गया था। द आइडिया बिहाइंड द प्रियम्बल वाज टू मेक क्लियर व्हाट इज नॉट सो क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कई कई बार होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कहाँ दे रखी है ये चीज़, फिर हमें भरोसा होता है कि अच्छा। अभी मैं इसकी रेलेवेंस बताता हूँ। 2017 में हमारे जस्टिस चंद्रचूड़, राइट, बहुत ही अच्छे जज हैं, वन ऑफ द वेरी फ्यू गुड जजेस दैट वी आर लेफ्ट विद इन द कंट्री ऑफ टुडे, ओके, विदाउट एनी कमेंट्री ऑन द अदर जजेस। सो उन्होंने 2017 में ये कहा, प्रियम्बल में जो वर्ड सॉवरेन दे रखा है, इसका मतलब राइट टू प्राइवेसी का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को होगा। सरकार के वकील ने कहा कि नहीं नहीं, जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो फेसबुकिए लोगों का है, व्हाट्सएपियों का है, लेकिन जो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर लोग हैं, उनको अपना अंगूठा वगैरह, आधार, बायोमेट्रिक देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब उन्होंने ये सीधा सीधा बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको ये दे दो, इनको राइट टू प्राइवेसी ब्रीच होने से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ये कह रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एक और स्कूल ऑफ थॉट था, लॉयर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं टैसिटली ही सही आर्टिकल 21 में प्रियम्बल में मेंशन्ड है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस बात से अग्री किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी इज गिवन इन दी वर्ड, इट इज समवेयर हिडन इन दी वर्ड सॉवरेन। तो मैंने जो आपको सॉवरेनिटी का मीनिंग बताया ना, इंडिविजुअल सॉवरेनिटी देन नेशनल सॉवरेनिटी, उसका यही मतलब है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं सॉवरेन हूं, तो यानी कि मैं स्वायत्तता, मेरी ऑटोनॉमी है, मैं जो चाहूं, मेरी मर्जी, मैं अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स दूं चाहे ना दूं। समझ में आया। तो जब कभी सुप्रीम कोर्ट को कभी कोई कंफ्यूजन होता है कि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं दे रखी, तो प्रियम्बल के इन वर्ड्स को एम्पलीफाई करके आज तक, एज रिसेंटली एज 2017, सुप्रीम कोर्ट साइटेड प्रियम्बल टू कॉन्फर अपॉन द सिटीजंस ऑफ इंडिया द राइट टू प्राइवेसी। ट्राई टू appreciate this point, try to memorize this so that we can move further. Clear? कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो फटाफट, शाबाश। Any doubts? Any doubts, guys? Quickly. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। Shall we proceed now? Preamble is equal to introduction to the constitution. Yes. तो ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा वैसे तो, बट चलो आगे। Now, in Keshwan wavering stance, despite this, the Supreme Court held that preamble is not a part of Constitution. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी अच्छी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि preamble throws light on several vague principles। पूछा कि अच्छा तो हम ये मान लें कि preamble is a part of Constitution। सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं 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 नहीं, हम इंदिरा गांधी के एरा में मरवाओगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, preamble is not a part of Constitution। ठीक है,
केशवानंद भारती केस में इंदिरा गांधी का डर भौकाल सब खत्म हो गया. फाइनली ये बोला 1973 में, changing its stance, Supreme Court held that preamble is a part of Constitution. केशवानंद भारती केस में फाइनली, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि preamble is a part of Constitution, तो एक सबसे फेमस, जो आज तक भी सबसे फेमस केस है, केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि yes, preamble is a part of Constitution. Clear? Constitution 42nd Amendment Act. Constitution 42nd Amendment Act 1976 inserted words socialist, secular and integrity. तो जब ये अमित शाह ने कहा था 2014 में कि हम ये वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को डिलीट कर देंगे, तो इन माय प्रीवियस क्लास आई वाज टीचिंग यू दैट वर्ड डॉक्यूमेंट, इफ यू रिमेंबर, इन विच आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि कैसे ये सारी चीज़ें कन्वर्ज हो रही है ना, ये कैसे हमारा सोशलिज्म, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी हैज़ बीन रन रफ शॉर्ट ओवर. वी हैव इग्नोर्ड द सोशलिस्ट टेनेट्स ऑफ आवर इकोनॉमी very very easily, very you can say conveniently. We have ignored them because, लिखो मेरी बात और ध्यान से सुनो इधर. देखो, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम लोग जो है पॉलिटी कुछ इस तरह से समझ जाओ कि कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसे टैकल कर पाओ. समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें आधी बातें अभी फालतू की लगेंगी, जब क्वेश्चन सुनोगे ना वहाँ पे तो तुम्हें समझ में आएगा, हाँ जतिन सही कह रहा था. सुनो मेरी बात इधर. तो पॉइंट क्या है कि जब हमारी कंट्री में, डेमोक्रेसी में कोई भी क्राइसिस आता है ना, तब डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड करती है चीज़ों को. पानी का क्राइसिस अभी नहीं आया, हम पानी का क्राइसिस आ जाएगा फिर हम जागेंगे कि भाई यहाँ पानी का क्राइसिस आ गया, आप कुछ करो. वैसे ही जब आर्थिक संकट आया था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस था, इंडिया के पास इकोनॉमिक, उसको पैसे देने के लिए 7 दिन के पैसे नहीं थे. इकोनॉमी में 7 दिन के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल को पे करने के लिए. तब हमें याद आया, ओ लिबरलाइजेशन करते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं, ग्लोबलाइजेशन करते हैं. समझ रहे हो? तो डेमोक्रेसी क्राइसिस के दौरान ही रिस्पॉन्ड करती है. कभी भी देख लेना डेमोक्रेसी ने क्राइसिस के दौरान रिस्पॉन्ड किया है. हमारी कंट्री में परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट कभी ना होता. कब किया गया? पहली बार तब किया गया जब हम संकट से थे, चाइना से वार से निकले, चाइना के साथ वॉर हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ हुआ, फिर उसके बाद याद आया कि चलो यार अब न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं. राइट? करगिल वॉर हुआ, फिर हमने क्या किया? न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट किया. तो सेम तरह से हम जब कभी संकट आ जाता है तभी हम कुछ करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते. क्योंकि डेमोक्रेसी लाइक्स टू ट्रेड ऑन द कन्वेंशनल स्लोप. डेमोक्रेसी चढ़ाई चढ़ेगी नहीं. अगर कोई स्टीप स्लोप है, डिफिकल्ट कोई चीज़ है, तो वो नहीं करेगी डेमोक्रेसी. राइट? क्योंकि लोग उससे परेशान होते हैं. कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स लाया गया, हमारी कंट्री में रिफॉर्म लाया गया, लेकिन कब लाया गया? जब इकोनॉमिक क्राइसिस था. और उस टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे, वैसे देखो रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी करोगे तो वो गुनाह हो जाएगा, अल्ट्रा वायस दी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा. ये सब अच्छी अच्छी बातें मेरे जैसे टीचर पढ़ाते हैं, है ना. लेकिन जब कभी क्राइसिस आता है तब क्या होता है? भाड़ में गई कॉन्स्टिट्यूशन, विदर कॉन्स्टिट्यूशन. whenever the crisis strikes at our door, wither constitution, we very conveniently keep aside all the books and we keep aside all the law and every talk around law, and we jump to the conventional logic. Clear? So these things are there. Now in LIC case, Supreme Court again reiterated the same position that preamble is an integral part of the Constitution, but preamble is non-justiciable part of the Constitution. ठीक है? तो ये जो अमित शाह ने जब बोला ना कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और ये सारे वर्ड्स को हम डिलीट कर देंगे, तो एक डिबेट स्टार्ट हुई. अभी भी ये सब कुछ चलता रहता है कि सेक्युलर नहीं है, हम सेक्युलरिज्म को डिलीट कर देंगे, इंडिया एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा, बोलते रहते हैं ना कुछ कुछ नेता. तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में या मेंस में, घुमा फिरा के. ट्रिगर फैक्टर यही होगा इन नेता लोगों की डिबेट्स और ये सब. तो ट्रिगर फैक्टर यहाँ पे ये हो जाता है कि प्रीलिम्स में कि क्या तुम ये बताओ कि सोशलिज्म कहीं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है या सिर्फ प्रियम्बल में इंसर्ट करा गया 1970s में, तब जाके ये इंसर्ट हुआ? क्या आपका मतलब ये है कि अब अगर हम प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को डिलीट कर देंगे तो उसका कोई अहमियत नहीं रह जाएगी? डू यू रियली मीन टू से दैट? हाँ बोलो.
नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38 में कहीं ना कहीं रेमिनेंट्स तो हैं, कहीं ना कहीं हल्की सी झलक सोशलिस्ट इकोनॉमी की हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम उतनी ब्लेटेंटली, उतना जो है एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में नहीं दे रखा कि हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी रहेंगे। लेकिन फिर दूसरे वर्ड को तोलते हैं कि अगर कल को अमित शाह दोबारा से कहें कि हम सेक्युलरिज्म वर्ड को डिलीट कर रहे हैं, तो तुम्हारा मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं रहेगी? India would no longer be considered as a Indian constitution would no longer be considered as a secular constitution if the word secular is deleted today. अगर सेक्युलर वर्ड को डिलीट कर दिया जाए तो इसका क्या मतलब है कि हमारा संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं रहेगी। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये राइट्स हमें देते हैं। प्रीफेज में कभी कभी ऐसा होता है कि बुक के प्रीफेज में लिमिट ऑफ वर्ड्स या कुछ ऐसा होने की वजह से बुक के प्रीफेज में कुछ वर्ड्स एंटर, कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज़ें बुक में लिखी हैं तो आप उनको भी नज़रअंदाज कर दोगे, राइट? यस। इंटेग्रिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी को, वर्ड को अगर डिलीट कर दिया जाए तो अमित शाह से जब पूछा गया कि इंटेग्रिटी डिलीट करने का मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि इंडिया जो है किसी भी और नेशन को, यानी कि किसी पाकिस्तान में बलोचिस्तान को एक्वायर कर सकता है। तो अगर हम इंटेग्रिटी वर्ड डिलीट कर दें तो डज इंडिया हैव अ राइट टू इनकॉर्पोरेट एनी आउटसाइड टेरिटरी? यस, इंडिया विल गेट दी लीगली, theoretically it will be a possibility। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वर्ड इंटेग्रिटी इंडिया में लिखा है तो इंडिया अपना कोई भी पार्ट ऑफ टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकता। बैरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। समझ में आ रहा है या फिर मैं ब्रेक लूं? बोलो फटाफट। Others also should comment. No, it's a democracy, it's a class on democracy preamble. Everyone should answer my question here. Continue or break? समझ आ गया चीज़ें? How to read all the cases? There is a PPT on these cases also. Okay, 5 minutes की नहीं, 2 मिनट की ब्रेक रहेगी, ठीक है? देखो, मैंने इंटेग्रिटी वाला पॉइंट तेज बोला था, इसलिए मुझे पता था तुम लोग गड़बड़ करोगे। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि इंडिया, पूरा जो टेरिटरी है ना इंडिया की, वो एक है बच्चे, समझ रहे हो? इंडिया का कोई भी पार्ट हम किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है? सॉरी, ऊपर का थोड़ा ब्रेक हो गया, ठीक है? इंडिया का कोई भी हिस्सा हम किसी को नहीं दे सकते। इंटेग्रिटी का मतलब ये है, जो यहाँ पे बलोचिस्तान मूवमेंट और ये सब पाकिस्तान, पंजाब में देखने को मिलती है ना, खालिस्तान बना देंगे और ये सब। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि इंडिया का कोई भी हिस्सा हम, कोई दूसरी पावर हमसे नहीं छीन सकती। हम किसी को, हमारी सरकार लीगली कोई भी हिस्सा नहीं दे सकती। समझ में आया? इंटेग्रिटी का मतलब ये है। इंटेग्रिटी का ये मतलब, जब अमित शाह से पूछा गया कि आप इंटेग्रिटी वर्ड को क्यों डिलीट करना चाहते हो, तो इंटेग्रिटी वर्ड को डिलीट करने के पीछे उन्होंने ये कहा कि इंटेग्रिटी के 2 मतलब है बैरूबारी केस के बाद, कि इंडिया कैन नॉट सिसीड। सिसीड होता है SECEDE,
सीसीड होता है SECEDE, मतलब हम अपना कोई हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकते, ठीक है। यानी कि इंडिया विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट। ये लिखना ज़रूरी क्यों था? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे ज़रूरी इसीलिए समझा कि यहाँ पे जो तमिलनाडु है, तो तुम लोगों को पता नहीं होगा, नाडु का मतलब है एक सेपरेट कंट्री, तमिल में नाडु का मतलब होता है सेपरेट कंट्री। तो इतनी ज़्यादा सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, पंजाब में खालिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर को अलग करने की, फिर यहाँ पे जूनागढ़ स्टेट। इसीलिए प्रियम्बल में ही ये लिख दिया गया कि इंडिया विल बी एन इंटीग्रल कंट्री। दूसरा मतलब इंटेग्रिटी का ये भी हो गया कि इंडिया जो अतिथि देवो भव या सर्वधर्म संभव या वर्ल्ड इज़ अ फैमिली में बिलीव करने वाली कंट्री है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी जजमेंट में ये कहा कि वर्ल्ड इज़ अ फैमिली वाला जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम वाला जो आचार है, जो विचार है, वो भी हमें इंटैक्ट रखना होगा। वी हैव टू रिमेन अ पीस लविंग कंट्री, वी कैनॉट इंडल्ज इन एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इवन इफ पाकिस्तान, ठीक है। तो अमित शाह अपने आप को एग्रेसिव दिखा रहे थे, वो 56 इंच का सीना वाला एटीट्यूड था ये कि हम अगर चाहें तो किसी दूसरी कंट्री को भी एक्वायर कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि पाकिस्तान की तरफ इशारा था, बालोचिस्तान की तरफ खासकर। अब समझ में आया सबको? अब तुम मेरे से ये पूछो कि ये प्रियम्बल में जो वर्ड्स दे रखे हैं, ये तो सिर्फ एक कर्सरी रेफरेंस है। कर्सरी होता है एक सरसरी वे में, जैसे हम बात करते हैं ना, सरसरी बोलते हैं हिंदी में, कर्सरी रेफरेंस है इनका। लेकिन हर आर्टिकल, हर प्रियम्बल में दिया गया वर्ड, उससे जुड़ा कोई ना कोई एक आध आर्टिकल, चाहे वो आर्टिकल 1 हो, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, दे रखा है ना ये। वैसे ही प्रियम्बल में जो भी चीज़ें दे रखी हैं, सोशलिस्ट आर्टिकल 38 उसको जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, 38, 39। वैसे ही पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करी गई है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, मैंने समझाया, पीछे समझाया ना राइट टू इक्वालिटी। तो वैसे ही सारे आर्टिकल्स उससे दे रखे हैं। प्रियम्बल में दिया गया एक एक वर्ड, एक एक एडवर्ब जस्टिफाई किया जा सकता है थ्रू वन और द अदर, थ्रू ईदर वन और मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझ में आया? इंटीग्रिटी के दो मतलब है, ना तो हम किसी को छेड़ेंगे ना कोई हमें छेड़ेगा, ना हम किसी की टेरिटरी को एक्वायर करेंगे ना किसी को अपनी टेरिटरी एक्वायर करने देंगे। भारत सरकार यदि चाहे भी तो भी कोई एक आध हिस्सा किसी को नहीं दे सकती। लेकिन अभी जो वेस्ट बंगाल के एनक्लेव्स हैं यहाँ पे, उनको ट्रांसफ़र करना अलाउ कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, 9th शेड्यूल में उसे डाला गया है, ठीक है, वो भी मैं आगे समझाऊंगा। बेरुबारी जजमेंट को पूरा हम समझेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट केम इज हाउ टू स्टडी ऑल द आर्टिकल्स, हाउ टू रीड ऑल ऑफ द केसेस, हाउ टू रीड ऑल ऑफ द केसेस का एक सिंपल आंसर है मेरे पास। ये जहाँ पे रेलेवेंट प्लेसेस पे आएंगे, हमारी एक पीपीटी है, जो लोग पहले से इस कोर्स में थे, फंडामेंटल राइट्स केस स्टडीज़, ठीक है, केस लॉ जिसको मैं बोलता हूँ, जूरिस्प्रूडेंस अराउंड फंडामेंटल राइट्स, द फाइट बिटवीन, मेरा एक अपना लेसन रहता है, फाइट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें हम शुरू करेंगे शंकरी प्रसाद केस 1951 से, A.K. गोपालन केस और ये सब से लेकर 1973, फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 तक उसे लेके जाएंगे, ठीक है। ये क्लास तुम्हें मिस नहीं करनी। Sovereignty is a part of integrity, yes. No, you cannot say that sovereignty is a part of integrity. Sovereignty and integrity are interrelated. Okay. अब देखो इसे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे और भी मुझे पढ़ाना है, फिर तुम्हें प्रीलिम्स भी आ रहा है ना। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, कौन से एक्ट ने डाले थे? 1976 के एक्ट ने ये वर्ड्स डाले थे। सोशलिस्ट मतलब इससे सरकार को हक मिले। क्यों सरकार ने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्यों ये डाले थे? वाई दीज वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स, उस टाइम पे भी वोट बैंक पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इंटेग्रिटी इसलिए डाला गया क्योंकि मैडम उस टाइम पे 56 इंच का सीना दिखा रही थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, गलत मत समझना मुझे। आज वुमेंस डे है लेकिन उनको दुर्गा माँ कहा जाता था। सुनो मेरी बात, मैडम ने क्या किया था? बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर लड़ा था, समझ में आया? 1971
लिबरेशन वॉर लड़ा था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती थी, उनको दुर्गा माँ कहा जाता था ये सब। सोशलिस्ट से क्या किया गया, प्रिवी पर्सेस, जो ये किंग्स एंड क्वींस थे ना, वो जो तुम देखते हो माय नेम इज़ कलाम मूवी में, वो प्रिंस जो एक किंग होता है वो रोता रहता है कि हमारी प्रॉपर्टी छिन गई, चेस खेलता रहता है राइट। तो मतलब जिन लोगों ने देख रखी है सिर्फ इसलिए, तो वो जो मतलब ये रोता रहता है कि हमारे पास सब कुछ था, घोड़ा ले गया, मेरे हाथी ले गया, वजीर, ये सब जो चेस खेलते हुए तुम्हें देखता है ना, वो अब्दुल कलाम का अंकल जो उसमें दिखाया गया राइट। तो वो क्या, उनके क्या किया गया, इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें 25-30 लाख रुपए महीने की पेंशन मिलती थी राइट, 25 से 30 लाख मंथ का। अब तुम सोच के देखो, प्रिवी पर्सेस में इंदिरा गांधी एक चीज़ लेके आई, गरीबी हटाओ। अभी जैसे मोदी बोलते हैं ना, मैं गरीब खानदान से हूँ, मेरी माँ जो है घर में बर्तन धोती थी, ये सब करती थी, चाय बेचता था मैं, किसी ने नहीं देखा उनको चाय बेचते। वैसे भी गरीबी हटाओ का मतलब भी कुछ ऐसा ही माना गया, गरीब हटा दो। गरीब जो इधर जंतर मंतर और ये सब पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते थे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, उन सबको हटा दिया गया, बोला गरीबी हटाओ चल रहा कार्यक्रम राइट। तो ऐसी चीज़ें करी गई हैं इंडिया में पहले भी राइट। तो मोदी इज जस्ट रिपीटिंग दोज थिंग्स। नोटबंदी कर दी, तुम्हें बुर्बक बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि देखो अमीर बनाम गरीब की लड़ाई बहुत बार कराई गई है। इस पूरे विश्व का इतिहास पढ़ना, यूपीएससी की तैयारी तुम्हें ये बताएगी कि वहां पे क्या दिखाया गया। अमीर ये देख रहा है, गरीब ये देख रहा है कि ये देखो मेरे साथ वाला आदमी भी एटीएम की लाइन में खड़ा है, बैंक की लाइन में खड़ा है, ये भी नोट बदली करवाने आया है, नोट अपने चेंज करवाने आया है ना। उसको ये नहीं दिख रहा गरीब को कि मेरी एक दिन की दिहाड़ी चली गई, क्योंकि उसको किसी ऊपर से किसी ने गुमराह कर दिया कि अमीर बनाम गरीब में मैं गरीब के साथ हूँ भाइयों बहनों, उसने ये कर दिया। लोगों को लगा हाँ देखो अमीर भी खड़ा है, गरीब भी खड़ा है। गरीब ये नहीं देख रहा कि मैं और गरीब हो रहा हूँ, कि मेरा डेली का जो वेतन है, सैलरी है, वेजेस है, मनरेगा में जाता, काम करता, दिहाड़ी करता, लेकिन मैं नोटबंदी करने के लिए खड़ा हूँ। ये क्यों किया जाता है? जब कोई मुद्दे नहीं होते, काम के विकास के मुद्दे नहीं होते, तो फिर ये सब चीज़ों में जनता को विचलाया जाता है राइट। ये काम इंदिरा गांधी ने भी किए। ये दिखाया गया कि सोशलिस्ट हैं हम, कैपिटलिस्ट नहीं हैं। सोशलिस्ट वर्ड डालने से कुछ नहीं हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न तो पहले से ही एक्वायर कर रखा था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जायंट गवर्नमेंट रोल वाज देयर, जायंट गवर्नमेंट रोल हमारी इकोनॉमी में, समझ रहे हो? तो वो तो पहले से ही था। लिखने से क्या हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना? अब जैसे तुम बोलो कि मैं संजू से प्यार करती हूँ, करते हो तो करते हो, बोलने से लिखने से क्या हो जाएगा? वैलेंटाइंस डे मनाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। वैसे ही सोशलिस्ट लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा। अब जिनका बॉयफ्रेंड का नाम संजू हो, कोई ये मत सोचना कि जेवीज आईएएस ऐप में जो है कहीं प्रिवेसी इश्यूज हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम मुझे कैसे पता। मैंने सिर्फ एक ऐसे ही संजय के नाम से ये बोला है राइट। नाउ Here's one Sanjay Gandhi selection. ये भी शुरू हो गया, देखो आज तक टेरर है उसका। नाउ कमिंग हियर, हाँ हम कहाँ थे? सोशलिस्ट। सेक्युलर वर्ड क्यों इंसर्ट किया गया? उस टाइम मुस्लिमों की पकड़ पकड़ के संजय गांधी ने क्या किया? नसबंदी करवा। एक मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, लेकिन बात पते की कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सोशलिस्ट, सेक्युलर। सेक्युलर में क्या कहता कि मुस्लिम्स की आबादी को कम करने के लिए संजय गांधी ने ये पॉलिटिकल गिमिक रचा कि इन सब की क्या करो, वैसेक्टॉमी करवा दो ताकि इनकी आबादी कम हो जाए। उस टाइम पे काफ़ी लोगों को पकड़ा गया था, पंजाब में ये सब में, सब लोगों को पकड़ पकड़ के जानबूझ के उनका जो है नसबंदी करा दी ताकि वो बच्चे ना पैदा कर पाएँ, पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे। अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि मुस्लिम वोट मिलना बंद हो जाएगा। मुस्लिम वोट मिलना बंद हो जाएगा ना, तो जो एलीट मुस्लिम क्लास थी उनको अपनी फेवर में करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? सेक्युलरिज्म का ये भाबुड़ छोड़ दिया उसमें, ठीक है। जैसे अमित शाह ने कहा ना कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, वैसे उस टाइम पे ऐसे मुस्लिमों को बुद्धू बना। जैसे आज ट्रिपल तलाक लॉ को एबॉलिश करके ये सब करने की कोशिश करी जा रही है। तुम्हारा इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उस टाइम पे किया गया। इनके पीछे कुछ हो नहीं रहा है, बट उनको एम्पलीफाई करने के लिए, रीअसर्ट करने के लिए, रीअफर्म इंडियाज कमिटमेंट टू सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ रनिंग द इकोनॉमी। अब हमने ये, मैंने आपको पहले समझाया जब मैं सेट टॉप बॉक्स डब्बे वाला एग्जांपल समझा रहा था तुम्हें, सेट टॉप बॉक्स और ये सारा कुछ, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे लाइंस ऑफ रनिंग द इकोनॉमी आर चेंजिंग टूवर्ड्स कैपिटलिस्ट नेचर, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। नाउ सुप्रीम कोर्ट अगेन, अब उस टाइम पे क्या किया गया, हमारे यहाँ पे जब हिप हिप हुर्रे पीरियड चल रहा था, दिस वाज लाइक हे डे, HEYDAY, इंदिरा गांधी का टाइम वाज लाइक हे डे ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। बैंक्स को नेशनलाइज करा गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए सरकार के खिलाफ केसेस हो रहे थे, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी।
कि आप कैसे कर सकते हो ये सब। इसीलिए इंदिरा गांधी ने ये कहा कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी टर्म जो है सोशलिस्ट हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है, ताकि कोर्ट में जब इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ केसेस होंगे तो इस स्टैंड को जस्टिफाई किया जा सके। राइट, समझ में आया? क्लियर? नाउ पूछ लो जिनको कुछ पूछना है। Now, in LIC case 1995, Supreme Court again reiterated the same position that preamble is an integral part of the Constitution. But preamble is non-justiciable part of the Constitution. Preamble is non-justiciable part of the Constitution. ठीक है? Preamble justiciable नहीं है, यानी कि अब इस non-justiciable का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि preamble जो है, देखो मैंने एक बुक लिखी, मैं बुक लिख रहा हूँ वैसे आजकल, ठीक है, तो वेला हो गया हूँ थोड़ा, अभी काम वाम थोड़ा कम है, क्लासेस में कम ले रहा हूँ आजकल, तो मैं बुक पे चिंतन विंतन कर रहा हूँ आजकल, समझ रहे हो ना। अब ना तो कुछ ऐसा है कि भाई बैठे बैठे फ़ोन आएगा ऊपर से कि क्लास लो, स्पेशल नहीं तो अनस्पेशल ही ले लो, लेकिन स्पेशल क्लास लो, ऐसा कुछ नहीं होता मेरी ज़िंदगी में अब। राइट, मतलब इत्मीनान से सुकून है। तो अब क्या है, जैसे मैं बुक लिख रहा हूँ, मैंने उस बुक में लिख दिया कि बुक के प्रीफेस में ये लिख दिया कि ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, एनालिसिस भी, और इस पे आपको जजमेंट पे एनालिसिस मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन तुम लोगों ने बुक पढ़ी, अब तुम लोग बोलते हो कि चलो जतिन वर्मा पे केस करते हैं, इसकी बुक में प्रीफेस में तो ये लिखा है लेकिन कंटेंट में ये है नहीं, है ना। लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुमसे जो वादे कस्में जो करी गई हैं, प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी गई हैं, वो सिर्फ थेरेटिकल नेचर की हैं। प्रियम्बल पे देख के, प्रियम्बल पे जाके कोई ये नहीं कहे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा तो है, प्रियम्बल में ये लिखा तो है, लेकिन इसके खिलाफ हमें इंसाफ चाहिए। प्रियम्बल में अगर सोशलिस्ट लिख भी दिया और इकोनॉमी अगर सोशलिज्म पे नहीं चल रही तो तुम केस नहीं कर सकते, सिर्फ इस बेसिस पे कि प्रियम्बल वर्ड यदि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड या फिर सोशलिस्ट वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल में दे रखा है। जो चीज़ प्रियम्बल में दे रखी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी, उस पे विवाद करके जुडिशरी में जाके उसको एनफोर्सिबल बनाने के लिए तुम कोर्ट से नहीं गुहार लगा सकते। यू कैन नॉट फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू आस्क द गवर्नमेंट टू गिव यू व्हाट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल इफ that is not explicitly given in the constitution. समझ में आया? समझ में आया ये सबको? बताओ फटाफट। Today the position is that in the right to privacy judgment, Justice Chandrachud of Supreme Court cited the preamble as one of the sources apart from Article 21. Supreme Court cited, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी है, तो सरकारी वकील ने, अटॉर्नी जनरल ने पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि एक तो आर्टिकल 21 में दे रखा है और दूसरा प्रियम्बल में भी सॉवरेनिटी का जिक्र है। अब यहाँ पे देखो, जो मैं तुम्हें एडवर्ब्स समझा रहा था ना इतने 2-3 दिन से, एडजेक्टिव जो मैं समझा रहा था, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन्होंने बोला है कि डिस्कस ईच ऑफ द एडजेक्टिव्स। क्यों बोला है? तुम्हें मैं ना हमेशा ज़िंदगी लग जाए चाहे मेरी, ट्रिगर फैक्टर जरूर समझना। यूपीएससी बहुत
प्रेडिक्टेबल एग्जाम है। ट्रिगर फैक्टर क्या था? अमित शाह ने स्पीच दी थी, उन्होंने बोला कि भाई हम ये डिलीट कर देंगे, जीतने के बाद दोबारा से बोला अमित शाह ने, ठीक है। यूपीएससी ने बोला कि तुम यूपीएससी का एंगल लगाओ, यूपीएससी वाले बच्चे हो, मेंस में ये क्वेश्चन 2016 में पूछ लिया, गलत है यूपीएससी, नहीं गलत है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद भी अगर कोई ना पढ़ के जाए, एडिटोरियल इस पर छप रहे थे, तो लानत है फिर तुम्हारी तैयारी पे, राइट। इंडिया हैज़ गॉट अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ये मैं समझा चुका हूँ, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। कभी कभी अभी आगे देखोगे, हाउ फार हैव वी बीन एबल टू अचीव द आइडियल्स enshrined in the constitution? Do you think that the value of preamble has been reduced to a dead letter? अब इसको समझेंगे। मतलब ये पता है क्या पूछा जा रहा है कि जो प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो मुर्दा होने के बराबर हैं। इट्स लाइक द वर्ड्स इन द प्रियम्बल, द एडजेक्टिव्स दैट आर गिवन अराउंड द वर्ड रिपब्लिक आर नॉट रेलिवेंट टुडे। आर वी एबल टू जस्टिफाई, क्या जो प्रियम्बल में आइडियल्स दे रखे हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आदर्श दे रखे हैं, क्या हम उन पे खरे उतर पा रहे हैं? क्या आज हम उन पे जीवित हैं, कायम हैं? ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आंसर इज बी हियर। फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल जस्टिस दे रखा है, पीजे, पुअर जोक। पॉलिटिकल जस्टिस हमारी कंट्री में है नहीं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन अ वे ये कहा था, आज के एरा में यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते तो वो ये बोलते कि पॉलिटिकल जस्टिस इज अ पुअर जोक इन इंडिया विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ, just 1 minute guys, sorry. In the Constitution of India, I'm so sorry guys. Is it visible? Just sorry guys. Now, in the Constitution of India, promotion of international peace. In the Constitution of India, probably Maddie heard that I'm talking about Amit. Now, in the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in प्रियम्बल। ये ना जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस गलत होते हैं, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, वैसे तुम्हें पता होने चाहिए, कोई बात नहीं, अभी मैं सारा कुछ सबसे कवर करा दूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन केशवानंद भारती केस, in Keshwananda Bharti 1973 judgment, when the Supreme Court was petitioned that preamble cannot be amended under Article 368 of the Constitution, तो जब केशवानंद भारती केस में ये पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इवन दो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन स्टिल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 प्रोवाइडेड दैट नो अमेंडमेंट इज मेड टू द बेसिक फीचर्स। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दिए थे, प्रियम्बल में वो चीज़ें जो लिखी हैं आप उनको नहीं छेड़ोगे, ठीक है। यू विल नॉट टच दोज थिंग्स। प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो प्रियम्बल में दे रखे हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? देयर इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन व्हाट इज गिवन इन द प्रियम्बल एंड बेसिक स्ट्रक्चर। Secularism, sovereign, socialist, democratic, republican structure. Social justice, concept of social and economic justice. Clear? In January 2015, a controversy erupted related to the amendment of the preamble to delete the words socialist and secular, which were not there in the original constitution. Clear? In January 2015, a controversy erupted related to the amendment. तो ये controversy यही हुई थी। अब देखो, कहीं पे मैंने अमित शाह लिखा है तुम्हारे नोट्स में, नहीं लिखा। कहीं पे मैंने संजय गांधी लिखा है, नहीं। तो तुम्हें साइड ट्रैक करते हुए पॉलिटिकली न्यूट्रल लैंग्वेज में अपने आंसर्स लिखने होंगे। क्लियर? How easily, if you know how to play around with words, you can do this in this manner.
योर क्वेश्चन जो है आप बेसिक चीज़ें लिखोगे, केशवानंद भारती जो भी लिखोगे, फिर उसके बाद हाउ टू राइट आंसर्स, क्वेश्चन जो मैं धीरे धीरे से डिस्कस कर रहा हूँ इनको थोड़ा और बढ़ाते जाऊँगा जैसे जैसे तुम्हारा पॉलिटिकल मैच्योरिटी लेवल यूपीएससी वाला होता चला जाएगा, ठीक है, जैसे बेसिक नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। नाउ कमिंग हियर मेंस क्वेश्चन, यहाँ पे आता है प्रियम्बल, शुड दीज वर्ड्स बी डिलीटेड। अब कैसे इस आंसर को लिखना है यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। Inclusion of words socialist and secular is best seen as explication, amplification मतलब बढ़ाना, वो चीज़ें जो पहले से दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं स्कैटर्ड हैं, उनको एक वर्ड्स में कैरिकेचर में उतारना, ठीक है। तो the inclusion of words socialist and secular is best seen as explication of ideals modern India has drawn directly from the freedom struggle. Granville Austin said that the roots of these principles could be traced to 1931 Karachi Congress resolution, ठीक है, and to the two streams of socialist and nationalist sentiments. तो ग्रैनविली ऑस्टिन का हवाला हमने लिया, पहले हमने हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स बताए, प्रेसिडेंट्स मतलब पीछे के एग्जाम्पल्स, कि 1931 की कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन में ये दे रखा था, इवन मोरारजी देसाई लेड गवर्नमेंट। अब तुम्हें ना जनता पार्टी गवर्नमेंट ये सब नहीं लिखना अपने आंसर में, ठीक है, इन विच जनसंघ वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हें याद रहे, ठीक है। इवन दी मोरारजी देसाई लेड गवर्नमेंट या इवन दी गवर्नमेंट इन 1977 ईयर लिखोगे, एग्जामिनर इज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टू नो उस टाइम पे कौन सी सरकार थी, और वैसे भी तुम्हें सरकार क्यों बतानी है, ठीक है। तो डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी, मोरारजी देसाई ने 1972 में देखो ये वर्ड्स डाले गए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, लेकिन जो अगली सरकार आई 1978 में उन्हें भी ज़रूरी नहीं लगा, अगर उन्हें ज़रूरी लगा होता तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो पास किया था वो उसमें डिलीट कर देते, ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ऑल्सो एम्फेसाइज दैट इन एसआर बोमई केस, एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्युलरिज्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, इस पीपीटी पे देखो, नो अमेंडमेंट्स आर मेड टू द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। डन है। सेक्युलरिज्म सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में डिक्लेयर किया था कि भाई ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप इसे डिलीट कर ही नहीं सकते। सेक्युलरिज्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर विद और विदाउट द अमेंडेड प्रीएम्बल। तो चलो आपने प्रीएम्बल अमेंड कर भी दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। बट दी सिग्नल, अब देखो कितनी प्यारी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, उस टाइम में पीपीटी खुद बनाता था कि अच्छे से एकदम बैठ के ना, बट दी सिग्नल the dropping of these words would send will be disconcerting to the minorities, है ना। सेक्युलरिज्म को आप डिलीट कर रहे हो तो उस सरकार की छवि के बारे में, कैरेक्टर के बारे में मुस्लिम्स पे एक बुरा असर पड़ेगा। रॉयटर्स सिनेरियो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है, वो लोग तिल मिला जाएंगे, माइनॉरिटीज़ को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप सेक्युलरिज्म वर्ड को प्रीएम्बल से डिलीट करते हो, रिमूव करते हो, चेंज करते हो। क्लियर? डन है, सबको क्लियर है? ठीक है। इज आर पॉलिटी, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बनाया है तुम्हारे लिए, इतने कुछ जाओगे, इस लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है। यस, is our polity living up to the word, is our polity living up to the letter and spirit of the preamble? सो क्या हमारी पॉलिटी आज जो भी वर्ड प्रीएम्बल में दे रखा है उस तक लिव अप कर पा रही है?
देखने को देखो तो नहीं कर पा रही, कैसे कैसे नहीं कर पा रही? क्योंकि आगे देखते हैं, ठीक है। कैप्टिवेटिंग, ये आंसर तुम्हें कैसे लिखना है अब तुम देखो। द कैप्टिवेटिंग वर्ड्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक इन द प्रीएम्बल आर नथिंग मोर देन पॉम्पस रेटरिक्स। पॉम्पस मतलब जैसे पॉम्प एंड शो होता है ना, पार्टी में जाते हो तो पॉम्पस रेटरिक्स मतलब दोहराने के लिए रह गए, डेकोरेटिव रह गए सिर्फ। सॉवरेन when we are the largest, अगर हम इतने ही सॉवरेन हैं, नेशनल हैं, सॉवरेन हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो why are we the largest importers of arms and ammunitions? Isn't it a hypocrisy that एक तरफ तो हम अपने आप को सॉवरेन बताते हैं, दूसरी तरफ हमें इतना डर लगता है चाइना से और ये सबसे कि हमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेपन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं ना। ये हो गया। फिर मैंने तुम्हें डेमोक्रेसी का जो मतलब बताया कि हमारे यहाँ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो रही, याद आ रहा है ना, चमक रहा है कुछ। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने जो क्वेश्चन पूछा मैंने तो सिंपल लैंग्वेज में पूछा। यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछ रही है, तुम देखो, डिस्कस ईच एडजेक्टिव, राइट, जो लिखा है इसको तुम जब डिकोड करते हो क्वेश्चन को, डू यू थिंक दैट द वैल्यू ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ डेड लेटर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है सही मायने में यूपीएससी के लिए पढ़ना। अब तुम्हें जो पढ़ाया जाता है भजन कीर्तन स्पेशल क्लासेस में, वो तुम देखो, राइट। मतलब बात समझो मेरी, राइट। सफ़ेद टी शर्ट ऐसे ही नहीं पहनी है मैंने, तो वो दिक्कत है उसमें कुछ काली टी शर्ट में, समझ रहे हो ना बात। नाउ वी से दैट सॉवरेन वी आर दी वहाँ पे पता क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोगों के साथ तो दोस्तों वाला काम है। वहाँ पे क्या होता है कि भाई बस आवर्स पूरे करो अपने, 50 घंटे काम करो, इतने पैसे मिल जाएंगे। 100 घंटे क्या पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, भंगड़ा करो, चाहे कुछ करो, जोक मारो, लाल लालियों पढ़ो या कुछ पढ़ो, तुम्हें पता होगा मैं किन टीचर्स के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ भी करो, राइट। 1-2 साल तो ठीक है, कर लोगे ऐसे रोबोटिक लाइफ। तीसरे साल फिर लगता है अगर ज़मीर वाले सही मायने में तुम यूपीएससी वाला मटेरियल हो, आईएएस वाला, तो तुम नहीं कर पाओगे। पैसे के लिए तो यार बहुत लोग नाचते, तुम्हें पता है, राइट, समझ रहे हो, है ना। शादी के बाद भी आते लोग कुछ। तो व्हेन 80% ऑफ द पीपल आर इकोनॉमिकली वीक, सोशलिस्टिक, क्या हम सोशलिस्टिक अपने आप को कह सकते हैं? 80% लोग इकोनॉमिकली वीक हैं और हम लिबरलाइज्ड हो चुके हैं, प्राइवेटाइज्ड हो चुके हैं, ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में आ चुका है, इवन की जो सिविल सर्विसेज है उसमें भी लेटरल एंट्री आ रही है। जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं वो अब आपको पॉलिसी मेकिंग में दिखेंगे। तो काय का सोशलिज्म यार, डिलीट करो, खत्म करो उसे। वी कैन अचीव द रियल सोशलिज्म। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टीच यू? आई एम ट्राइंग टू टीच यू द गैप बिटवीन द थियोरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द डेमोक्रेसी एट द वर्क, the two things that I mentioned about in the very first class. We can achieve real socialism only by making the rich genuinely involved. मतलब अंबानी को आम आदमी की मतलब ये अपने आप में बोलने का अच्छा लगता है, अंबानी को आम आदमी की वेलफेयर में इन्वॉल्व जब हम कर पाएंगे। We say that our secularism means equal treatment of all religions. But आपने कभी किसी सेक्युलर कंट्री के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, हाईएस्ट बेंच ऑफ लॉ को आपने देखा है सरकार को ये हिदायत देते हुए कि 3 महीने में मंदिर बनाने का काम चालू किया जाए? स्टार्ट द वर्क टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल विद इन 3 months। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया सरकार को, ठीक है। तो वी से दैट, अच्छा चलो ये तो सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म हो गया, जो कि सेक्युलर कोर्ट होना चाहिए, उसको ये डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए थी, है ना। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हुआ क्या था, बाबरी मस्जिद गिराया गया, पहले बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं, वहाँ पे उस फैसले को छोड़ देना चाहिए था। सरकार को ये हिदायत देना मतलब आप सरकार जो है वो भी मंदिर बनाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट भी मंदिर बनाना चाहता है, गलत हो जाता है ना यहाँ पे ये चीज़। सेक्युलर कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। Secularism, when we say that secular means that our secularism means the equal treatment of all religions, but the truth is that gullible people are falling prey to self-declared gods.
तो अंधविश्वास के नाम पे गुरमीत राम रहीम जैसे यू आर दी लव चार्जर सॉन्ग बनाने वाले लोग करोड़पति अरबपति लोगों को चूना लगा लगा के बन रहे हैं, ठीक है। आसाराम जैसे लोग रेपिस्ट टर्न आउट हो रहे हैं। फिर एक और रामपाल था हरियाणा का। तो एक काम तो मोदी जी ने अच्छा किया है ना, इन सभी को जेल भेज दिया, समझ रहे हो। सब बाबा जेल में, एक ही बाबा बचा है, कौन? वो खुद। नाउ तुम बात समझो, राइट। नाउ आजकल दाढ़ी भी वैसी आ गई है, समझ रहे हो ना। नाउ गलिबल आर फॉलिंग प्रे। देखो बीच बीच में मोनोटनी को तोड़ने के लिए मैं ये सब करता हूँ, अदरवाइज आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर हिम। सुबह 4 बजे ही उठने की आदत मुझे आज तक नहीं हुई, लेकिन मैं 10 बजे उठ के भी अच्छा काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, DNA शेरने। नाउ कमिंग हियर, मेंशनिंग ऑफ द काउ। If all life is precious, why cow has been singled out? अगर एक चीटी में भी बोला जाता है कि भगवान बसता है, ये लिखा है ना, तो सिर्फ गाय ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखी है, समझ में आया। अगर क्वेश्चन आता है थियोरेटिकली, ये ग्रैनविली ऑस्टिन वगैरह का एनालिसिस है, कहीं मुझे मत बोल देना कि मतलब मैं सेडिशन और देशद्रोह के चक्कर में फंस गया, राइट। ये ग्रैनविली ऑस्टिन ने अपनी बुक में लिखा है कि सारी लाइफ, अगर सभी तरह की ज़िंदगी, चाहे वो अमीर की हो, गरीब की हो, चीटी की हो, हाथी की हो, गाय की हो, कौवे की हो, सभी में भगवान बसता है, सभी लाइफ फॉर्म्स सेक्रेड हैं, तो सिर्फ गाय का मेंशन वहाँ पे क्यों किया गया, राइट। हिंदुत्व हुआ क्या था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट्स हो रही थी, तो आर्टिकल 29 और 30, ध्यान देना मेरी बात पे, आर्टिकल 29 और 30 यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्शन दिया गया। मुस्लिमों को जिस तरह से ब्लड शेड हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस के दौरान, ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन के दौरान जो करवाया था, मुस्लिमों को एक सेंस ऑफ सोलेस देने के लिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए कि देखो आज़ाद भारत में तुम्हारी एक जगह है, उसके लिए हमने आर्टिकल 29 और 30 बनाए। और आर्टिकल 25, 26 में हमने सेक्युलरिज्म लिख दिया। तो काफ़ी हिंदुत्व ब्रिगेड के जो लोग थे, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनको इस बात से दिक्कत हुई। तो उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये कहा कि अगर आर्टिकल 29 और 30 कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे तो गौ माता का जिक्र भी हमारे संविधान में लिखा जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि हाँ लिखा तो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में कहीं हिंदुत्व या हिंदुइज्म नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो नॉन जस्टिसिएबल पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखेंगे। चमका, शुड आई वेट फॉर 1 मिनट? क्लियर है सबको? चमका के नहीं? फटाफट बोलो, और सारे बोला करो, बीच में गुलटी मत करा करो, फटाफट से बोलो। तुम लोग बीच में गोटी कर जाते हो, आधे लोग बोलते हो आधे नहीं। रिपीट के लिए भी इसमें वीडियो में ऑप्शन आएगा, अभी 5 मिनट में मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, पूरी रात बैठ के सुनना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट मत कराओ गाइस एक बार। Abir, you can repeat this, my dear. You can play it again, and if you have any doubt, मेरी बहुत एनर्जी लगती है यार, ऐसे नहीं, दिक्कत बात समझा करो। Now, democracy. Finally, our claim as the largest democracy of the world is more of a hype. आधे लोगों को पता नहीं है, आधे लोग क्या करते हैं, हाथ पे निशान दबाते हैं या कमल के बटन पे हाथ लगाते हैं। उनको ये क्या पता कि उन पार्टी के चार्टर में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। जब उन्हें यही नहीं पता कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, तो फिर काय की डेमोक्रेसी है ना। मनी, मसल एंड पावर। सेकंड ARC ने ये कहा कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कैसे जीता जाता है, ज़रा समझो। मैं ब्लैंक स्लाइड पे जाने के लिए PPTs मेरे को वापस करनी पड़ती हैं। देखो, आज APMC एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा अपने अंदाज में, तुम्हें कोरिलेट करना होगा करंट अफेयर्स के साथ में। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सेकंड ARC कहता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स is leading to politicization of crime.
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, ठीक है। गुंडा पहले एक नेता की सेवा करता है, ठीक है, फिर उस गुंडे को ये लगता है कि नेता मेरी वजह से जीत रहा है, नेता उसके इलेक्शन, देखो सबसे पहले क्रिमिनल बनता कैसे है, मैं एक बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर की कहानी शेयर कर रहा हूँ। वो चीफ मिनिस्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे, पहले ही वॉज अ हुलिगन, ठीक है। हुलिगन होता है जो गुंडा और ये सब होते हैं, मतलब रेपिस्ट वगैरह नहीं, फीमेल साइड पे नहीं, लेकिन हाँ हफ्ता वसूली करना और ये सब, ये हैं YSR राजशेखर रेड्डी। मिलती जुलती कहानी है, अडेप्टेड वर्जन है जतिन वर्मा के द्वारा, सुन लो इधर। तो ये क्या करते थे कि ये YSR राजशेखर रेड्डी, ही यूज्ड टू बी अ हार्डकोर क्रिमिनल, नॉट ऑन द साइड ऑफ फीमेल एंड ऑल, ही हैड अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद ये जो हफ्ता वसूली करते थे, ये रॉबिन हुड स्ट्रैटेजी की तरह अपना पैसा गरीब लोगों में, जिनके घर पे रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, उनमें बांट देते थे। तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट जब ये करने लगे तो प्रॉब्लम क्या हुई, ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते 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 इनको लगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो इनकी वजह से जीत रहे हैं। तो इनको लगा कि क्यों ना मैं MLA बन जाऊं, और इन्होंने MLA के वोट इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया। एंड लोगों को डरा के धमका के, इनका रोब तो पहले ही था, एक जगह गरीबों की भलाई और दूसरी जगह अमीरों से हफ्ता वसूली, तो वोटों में इलेक्शंस में ये जीत गए। एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, पॉलिटिसाइजेशन क्या है, क्राइम को पॉलिटिक्स बचाने लगता है, क्राइम को पॉलिटिक्स बचा लेता है, फिर पॉलिटिशियन, वो क्रिमिनल जो है एक दिन खुद ये 56 इंच का सीना ले आता है कि उसे पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिक्स फिर क्रिमिनलाइज हो जाता है। फिर आप देखते हो लोकसभा में 44% MPs आर टेंटेड विद पुअर क्रिमिनल रिकॉर्ड, ओके, बैड रिकॉर्ड, हिस्ट्री शीटर्स, क्रिमिनल्स, हफ्ता वसूली करने वाले, ऐसे ऐसे लोग आपको लोकसभा में देखने लगते हैं, जिनसे जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं। फिर आपको क्रिमिनल ये बोलते हुए दिखाई देते हैं शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में कि अगर मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं उंगली काट दूंगा, तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। तो शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग जो हैं डरते हैं, ST लोग डरते हैं, इसलिए उनको वोट दे देते हैं और वो पहुंच जाते हैं लोकसभा। ये हो गया है हमारे यहाँ का कल्चर। तो डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं वो क्या बन गई है, क्रिमिनलोक्रेसी। अगर लोकसभा में 44% MPs टेंटेड हैं, राज्यसभा में ये सेम सा रेशो है, या राज्यसभा में बहुत अच्छा है, फिर भी पीपल विद नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड लाइक सुरेश प्रभु आर देयर, राइट, वेरी गुड पॉलिटिशियन एंड इंटेलिजेंट वन। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में के भी आंकड़े कुछ इस तरह से कहते हैं। तो मैं इसको अपने वर्जन में क्या करता हूँ, देखो गुरमीत राम रहीम आज भले ही जेल में हो, बाबा है, गॉडमैन है, कंट्रोवर्शियल है, जो भी है, ठीक है। तो बाबा, देखो, मासेस फॉर वोट्स, मासेस को क्या बोला जाता है, तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे। मासेस को क्या चाहिए, 15 लाख आएंगे, पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा, वो तुम्हें वोट दे देगा। क्लासेस तुम्हें नोट देंगी, अदानी अंबानी तुम्हें नोट देंगे, तुम इलेक्शन लड़ो, क्लासेस फॉर नोट्स। मासेस को बोला जाता है किस तरह के वादे करे जाते हैं, 15 लाख वाला वादा एक है, फिर उसके बाद गरीबी हटाओ, इंदिरा, मैं दोनों न्यूट्रल, पॉलिटिकली मैं न्यूट्रल पर्सन हूँ, मैं इसलिए तुम्हें दोनों तरह के एग्जांपल दे रहा हूँ। गरीबी हटाओ, यही किया था ना इंदिरा गांधी ने। फिर उसके बाद एक और वादा किया गया, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2020। पता लगा, ओ 2020 बोल दिया, ज़्यादा हो गया, तो पूरा तो हो नहीं पाएगा, इसको फिर डेट को सरका दिया जाता है, 2022 कर दिया जाता है। फिर भी नहीं हो पाएगा तो 2024 अपना ही है, भाइयों बहनों, समझ रहे हो। तो ये है, लोगों के साथ वादे करे जाते हैं। अब इनके वोट ज़रूरी हैं क्योंकि तुम्हें सत्ता में आना है, क्योंकि तुम्हें CM या PM बनना है। क्लासेस के नोट्स भी ज़रूरी हैं क्योंकि इनको जो बोतल चाहिए, इंदिरा गांधी की एक मीटिंग हो रही थी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने उस मीटिंग में ये बोला, एक सेक्रेटरी, सभी सेक्रेटरीज़ की मीटिंग बुलाई 1970s में, जब उन्हें दोबारा से इलेक्शन लड़ना था। सेक्रेटरीज़ की मीटिंग में उन्होंने ये पूछा कि कांग्रेस के पार्टी मैनिफेस्टो में हम क्या क्या लिखें। एजुकेशन सेक्रेटरी खड़े हुए, उन्होंने बोला कि मैडम हम इन्हें सब कुछ तो दे ही चुके हैं, गरीबी हटाओ में गरीबी में रोटी, कपड़ा, मकान, बैंक अकाउंट, लोन, मेलाज और ये सब दे चुके हैं, इस बार हम उन्हें एजुकेशन देते हैं। इंदिरा गांधी बहुत जोर से हंसने लगी, तो उन्होंने बोला यू फूल, राइट। बाकी सब सेक्रेटरी भी हटने लगे कि अच्छा उसको फूल कह दिया। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि अभी तो हम इन्हें क्या दे रहे हैं,
अभी तो हम इन्हें देसी दारू दे के काम चला लेते हैं, अगर इन्हें एजुकेशन दे दिया तो ये लोग अंग्रेज़ी मांगने लगेंगे। क्या अंग्रेज़ी मांग लेंगे? दारू अंग्रेज़ी मांगने लगेंगे, राइट। तो तुम लोग जो पढ़े लिखे हो, पीते हो ना अंग्रेज़ी, जाते हो ठेकों पे, है ना, तो अंग्रेज़ी मांगते हो, एंटीक्विटी और ये सब चीज़ें, राइट। तो वो क्या है, यही वाला डायलॉग है। तो क्लासेस के नोट्स से दारू वारू ये सब करा जाता है, ठीक है। चुनाव में जो खुल के चलती है वो सब, लेकिन जो बैन है लेकिन फिर भी चलती है। इनके पैसों से इनसे इश्तेहार, एडवर्टीजमेंट वगैरह, पैम्फलेट्स, ये सब कैंपेनिंग का खर्चा क्लासेस देती हैं। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब एक दो गुरमीत राम रहीम जैसे बाबाज सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं वो भी गए थे और उससे पहले वाले भी गए थे। उससे पहले वाले सोनिया गांधी के टाइम पे भी गुरमीत राम रहीम का आशीर्वाद लेके ही बने हैं। तुम्हें ये जान के बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बिकॉज मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज हैपनिंग क्वाइट ओपनली। आसाराम का भी आशीर्वाद लिया था, सभी चीज़ों का आशीर्वाद। ऐसे थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, कोई आशीर्वाद मिलता है बाबा लोगों का, भगवान की कृपा होती है तभी तो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, खासकर चाय वाला या दूध वाला, ऐसे नहीं बन पाता। रॉबर्ट वाड्रा हो तो अलग बात है, राइट। तो बात समझो, यहाँ पे मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ वो ज़रूर समझना कि मिक्सिंग, मैं क्यों समझा रहा हूँ। और मुझे कोई बाद में बोले कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, मैं उसे जस्टिफाई कर सकता हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अगर मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ कुछ, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आत्मा को भी जेल में डाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ये लिखा था कि 3 इश्यूज डेमोक्रेसी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। क्या? रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, हीरो वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप किसी को हीरो बना देते हो, उस हीरो की पूजा करने लगते हो, उस दिन आपकी आंखों पे पर्दा डल जाता है। अगर मैं गलत हूं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी गलत है, गलत बोल रहा हूं मैं। तुम्हें ये चीजें समझनी है। वो 3 हिस्टोरिक गॉस्पेल्स, गॉस्पेल ट्रूथ्स, गॉस्पेल ट्रूथ होता है बाइबलिकल ट्रूथ की जो चीज़ें अच्छी जगह पे लिखी गई हैं। वो 3 बातें जब जब हमारी डेमोक्रेसी भूलेगी, किसी भी नेता पे आप अंधविश्वास करोगे तो आपकी आंखों के आगे वो पर्दा बन जाता है और आप बन जाते हो भक्त। और जैसे ही आप भक्त बने नहीं, सामने वाला रावण हुआ नहीं। समझ में आ रही है चीज़? तो पॉइंट क्या है, उन्होंने ये चीज़ें बोली थी। प्रियम्बल के टाइम पे इन चीज़ों को पढ़ोगे तो तुम्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के और कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स समझ में आएंगे, राइट? एम आई क्लियर? ये आइडियल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से एनश्राइंड हैं। आप हीरो वर्शिपिंग करोगे तो ये दिक्कत होगी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी, क्या आज ये पॉसिबल है कि 15 लाख जो अकाउंट में आने थे उस पैसे को वापस क्यों नहीं लाया गया? I am a citizen with a neat and clean image. I have got a right to contest elections. मेरे को पता है क्या कहा जाएगा, नॉन सीरियस कैंडिडेट की वजह से EVM में एक और बटन इंसर्ट करना पड़ा। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को दूर रखने के लिए डिपॉजिट अमाउंट बढ़ाने की बातें करी जा रही हैं। वोटिंग एंड कॉन्टेस्टिंग, डेमोक्रेसी जैसे प्यार इज अ 2-वे रोड। तुम तब तक सामने वाले को प्यार करते हो जब तक तुम्हें सामने वाला प्यार करता है ना, यही बोला जाता है ना सही प्रेम प्यार की भाषा में। वैसे ही जब तक मैं वोट कर रहा हूँ, बट मैं वोट कर रहा हूँ तब मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का राइट अर्नेस्ट में, सही मायने में। वाई डू आई नॉट हैव द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन द राइट अर्नेस्ट? जैसे ही मैं इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर फाइल करूंगा, मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड, फिर मेरे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे कि मेरे पास पॉल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है कि नहीं, राइट? तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसको जब तक हम दूर नहीं करते, तो मेरे जैसा आदमी यहाँ पे ये लिखता है, कैन अ गुड सिटीजन थिंक ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस कंसिडरिंग द क्रिमिनलाइजेशन एंड मोनेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? समझ में आया? समझ में आ रही है ना चीज़ें? तो ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल देते हुए। नाउ जस्टिस, सोशल जस्टिस, काहे का सोशल जस्टिस भाई? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना, तो बात कर लेते हैं। डाउरी डेथ्स आर रिपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री एवरी डे डिस्पाइट प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, Prevention of Dowry Act. Conviction rate, however, is less than 35%. National Crime Record Bureau का अपना डेटा ये कहता है 2015 में 7600 women died in the country due to dowry harassment. अब हमें पॉजिटिव भी लिखना है। जब हम हर एक एडजेक्टिव को जस्टिफाई कर रहे हैं तो हमें साथ साथ ये भी लिखना है कि गवर्नमेंट ने निर्भया फंड एस्टैब्लिश किया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेके आए प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे, राइट। तो इंडिया टुडे के डेटा ये सारा कुछ आप कुछ ऐसे यूज़ करोगे, जो डेटा तुम पढ़ते हो ना उसे रेलेवेंट प्लेस पे स्टिकी नोट पे लक्ष्मीकांत में लिखोगे, तभी वो सरस्वती कांत बनेगी और तभी तुम्हें थोड़ी बुद्धि आएगी, वरना तो फिर पढ़ तो दुनिया रही है। समझ रहे हो ना बात मेरी? ये डेटा को अपडेट मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक जस्टिस, while the period 1950 to 1980 saw the poor narrowing the income gap with the well-to-do, with the Ambanis and Adanis, the trend has reversed over a period 1980 से 2014 में ये ट्रेंड बदल गया है। Also demonetization was a good step to check, अच्छी चीज़ें भी लिखनी है सरकार के बारे में, ठीक है। तो सरकार जो कर रही है ये अच्छा कर रही है। ये जो LIC को बेचना, ये सारा कुछ गरीब लोगों में राशन बेचने के लिए तो कर रही है सरकार, राइट। भले ही वो उल्टा हो, तुम्हें कुछ भी कहते हो कोई क्रिटिकल हिंदू न्यूज़पेपर में या कुछ, लेकिन तुम्हें उसको पॉजिटिव चेंज करना आना चाहिए। UPSC एस्पिरेंट की कला ये है कि उसको बोलो कि दिन को रात प्रूव करो तो वो प्रूव कर देगा, है ना। लेकिन अगर फिर उसे इंटरव्यू में दोबारा कहा जाए कि अब उसी रात को फिर से दिन प्रूव करो, उसे वो भी आना चाहिए। कला का नाम क्या है, हम क्या कहते हैं इसे? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, हर चीज़ के पता होने चाहिए। रैशनैलिटी क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन UPSC को क्रैक करने के लिए क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा और पॉजिटिव भी तुम्हारे पास होना चाहिए, राइट। विद दिस आई कंक्लूड द क्लास फॉर द डे। एनी डाउट्स, क्विकली आस्क द डाउट्स इफ यू हैव एनी बिफोर आई वाइंड अप द क्लास इन नेक्स्ट 2 minutes. Over to you guys, quickly. Quickly cover, ask the doubts. No doubts? Okay, fine guys. Thank you everyone. See you tomorrow the same time. 5:30 will be the class. Thank you everyone. Bye bye guys.